بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سبحان الله. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت سحر کے اس سیٹ سے اور اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے ذیشان اظہر میرا نام ہے اور آج 13ویں سحری ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی مغفرت کا اشرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت وہ گھڑیاں ہیں کہ جب ہم پیشانی کو سجدہ ریز کر کے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو ہم سے بچھڑ گئے، جو ہمیں تنہا اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، ان کی مغفرت مانگ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پروڈیوسر آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں.
تھوڑا سا وقت ملا تھا 2 دن پہلے کہ ان سے بات ہو سکی آن ایئر، پھر خداحافظ کا ٹائم آ گیا، لیکن آج الحمدللہ پورا پروگرام ان کے ساتھ ہوسٹ ہوگا۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم راہل۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج اللہ ہیں آپ کے؟ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آج وہ گھڑی پوری ہو گئی کہ میں آپ کے مد مقابل بیٹھا ہوں۔ ویسے تو استادوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک شرف ہوتا ہے، اور آج وہ شرف مجھے نہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ذیشان اظہر کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا نہیں ہوں۔ بھائی، میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تو محسن ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے محسن کو مان کر آگے چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ بے شک تو آپ میرے محسن ہیں، اور آپ کو اگر میں ایسا بولوں تو پھر غلط بات ہو جائے گی۔ بس ذرا نوازی آپ کی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور قاری محمد اشفاق صاحب نے خوبصورت قرأت کر کے پروگرام کا آغاز کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب۔ اور اسی طریقے سے ہم 30 دن آپ کو، یا 29 دن جو بھی چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 29 دن تو کنفرم ہے کہ قاری صاحب آپ کو اسی طریقے سے خوبصورت قرأت سناتے رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ قرأت سننے کے بعد ایمان جاگے، اور اس کے بعد آپ جا کر قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کی تا قیامت نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع پر ایک موقع دیا ہے، موقع پر بھی موقع دیا ہے کہ آپ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان میں درجات کو 70 گنا زیادہ بلند کر دیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے جتنا کر دیا۔ اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جناب۔ اور راو بھائی، ہم حمد باری تعالیٰ سے اس کے بعد پروگرام کا آغاز کریں گے، جس کے لیے رضوان زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے کانوں میں مزید رز کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا ہو پڑھو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو پڑھو، لا الہ الا ہو۔ اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، اب کیا مجھ سے دور ہے تو، لا الہ الا ہو پڑھو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا اللہ، تیری عبادت کیا کہنا اللہ، تیری حقیقت
طلب ہے ایک ہی خوب پڑھو لا الہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ رضوان زبیری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سنائی، اور ماشاء اللہ آپ کے پڑھنے کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بہت مددگار انسان ہوں گے، ایسا بھی ہے؟ اچھا، کچھ لوگ پوشیدہ ہو جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے کہ وہ کون تھے یا وہ کون سی شخصیت تھی جو گپت ہے یا ہڈن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈنے میں آپ ہماری مدد کریں گے؟ ایسی بات ہے؟ یہ راؤ بھائی سمجھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل، ان سے پوچھیں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے ہمارے جو باقی ناتخواں حضرات ہیں ان کا تعارف ہو جائے۔ نہیں، ہاں ان سے پوچھیں گے، بالکل پوچھیں گے، ضرور ہے، وہ تو پوچھنا ہے ان سے۔ خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا ہے تو پوچھنا بھی، لیکن ابھی تعریف بنتی ہے ان کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے کلام پڑھا۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا یہاں ہونا میرے لیے، ذیشان بھائی کے لیے اور اس چینل کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ سینئر ترین ثنا خوان رسول جناب ندیم نوشاہی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نوشاہی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ندیم صاحب آپ کو اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بڑی نوازش آپ کی، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے اور دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی آواز سنانے کا موقع دیا۔ بڑی نوازش۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب بڑوں کا سایہ ساتھ ہو تو رحمتیں بکھرتی چلی جاتی ہیں۔ بالکل۔ مزید کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، میں چاہوں گا باقی جو ہمارے ثنا خواں ہیں آپ تعارف کروائیں گے؟ نہیں، تعارف آپ کا۔ اچھا، میں کہلاتا ہوں۔ ٹیچر موجود ہو تو ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی محبت ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سفیان جو کہ ثنا خوان رسول ہیں۔ اچھا، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ آج کا ہی بتاؤں کہ میرے پاس ایک کال آتی ہے افنان صاحب کی۔ افنان نام ہے ان بھائی کا، افنان بھائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھی آواز ہے، لیکن کوئی پروموٹ نہیں کرتا ان کو، چینل پہ کوئی نہیں بلاتا۔ میں نے کہا ہمارے دروازے ایسے ٹیلنٹ کے لیے موجود ہیں، آپ بھیج دیجیے۔ تو یہ آج ان کی کال کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں، افنان صاحب کی وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، قاری سید عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ قاری صاحب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر طور کوئی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ جس سے خود خدا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے آپ کیا کہیں گے؟ جس سے خود خدا بلائے، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، اس سے آپ کیا کہیں گے؟
جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے آپ کیا کہیں گے، واہ واہ واہ. جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ذیشان بھائی مزے کو بھی مزہ آ گیا نا. بالکل. اور جتنے پولائٹ انداز میں یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں میں گھر کرتی جاتی ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی سی بات، جو چھوٹا چھوٹا سا لفظ آپ ادا کرتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ نعت سننے کا لطف ہی تب آتا ہے کہ جب آپ اگلے کو ڈبا دیتے ہیں واہ 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 واہ. جام میں کہ جو آپ محبت اور عقیدت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور اس کے بعد مزید جو بیٹھے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بات کریں تاکہ میرا انٹریکشن آپ سے رہے. جی بولیں. میں یہ بتانا چاہوں گا قاری صاحب کے بارے میں کہ قاری صاحب سے فرسٹ ٹائم میری لاسٹ ایئر ملاقات ہوئی تھی نا، پہلی بار. لیکن میں یہ پوچھوں گا قاری صاحب یہ اتنا سارا ٹیلنٹ چھپا کے کہاں رکھا ہوا تھا؟ جی بالکل بالکل. کرامت بھائی بہت بہت شکریہ کہ اصل میں یہاں پہ مجھے جو موقع مل رہا ہے. اصل میں کلیئر بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے اگر ٹیلنٹ ہے بھی کسی میں نا تو اس کو شو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس، کوئی نہ کوئی سفارش، یہ چیزیں چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو مقصد یہ تقریباً الحمدللہ مجھے جو ہے تقریباً 34 سال ہو گئے نعت خوانی کرتے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء میں کر رہا اللہ ہوں. ماشاء اللہ. اور لیکن یہ کہ اس حد تک جو ہے مقصد میڈیا پہ آنے کا موقع جو ہے کبھی ہوا نہیں. جو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی سپورٹ. نہیں ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کہنے پر آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگا دیتا ہوں اور ہمارے تو آپ اسٹار ہیں. ماشاءاللہ کم شخصیات ایسی ہیں جن میں ہمارے راؤ کرامت صاحب ہیں کہ جو بلا تفریق ثنا خانوں کو آگے لانے والے، انہیں متعارف کرانے والے بہت سے ثنا خان ماشاءاللہ جن کو ہمارے راؤ صاحب نے ماشاءاللہ اسکرین پر دکھایا اور آج وہ اپنا مقام لیے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی اجر ہے انشاءاللہ تعالی. ندیم صاحب میں تو وسیلہ بنتا ہوں، اصل میں کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن آپ کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کا جذبہ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. معاملت جو ہے جی ہاں وہ بھی بالکل بہت بڑی بالکل. چیز ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے لیکن ایک تو اس کو کوئی پالش نہیں کرتا، اور پالش اگر ہو جائے انسان تو اس کو پھر کوئی چانس نہیں دیتا. تو جیسے میں، آپ تو نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، میں ایز اے ہوسٹ بھی سحری اور افطار ٹرانسمیشن کر ہی نہیں پا رہا تھا. یہی وہ شخص ہیں جو مجھے لے کر آئے. اچھا لیکن میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی، یہ ہماری پہلی ٹرانسمیشن ضرور ہے. دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ آخری نہیں ہے، عید کے بعد بھی کچھ سرپرائز ملنے والا ہے انشاءاللہ راؤ بھائی ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں اگلے ثنا خوان رسول کی جانب. میری جو ہے وہ ندیم صاحب سے یہ ریکویسٹ تھی کہ جو میں نے کہا جی آپ مجھے فرمائش کی تھی تو پلیز مجھے وہ سننی ہے نا. لیکن پہلے سفیان صاحب سے ٹھیک ہے.
फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद नहीं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल। रिक्वेस्ट हाँ, मैंने याद मुझे- रखी। वो आपको याद है? नहीं, दूसरी बात ये है कि मैंने वो सुनी थी, राव भाई बताता चलूं कि वो बच्ची जिसने पढ़ी थी और आपने मुझे बताया जी उसका हाँ, नाम जी भी, हाँ। वो नाबीना बच्ची है, लेकिन कहते जी हैं हाँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की अलैहि मोहब्बत ऐसी है कि बगैर देखे उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और लाइव शो पर वो बच्ची रोते रोते उसने पढ़ना बंद कर दिया था। तो ये मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसी के साथ एक कॉल है जनाब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, कैसे मिजाज हैं? कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से कॉल की? जी मैं मेरे भाई ने बैलेंस कम डाला था, किसी का मोबाइल था, चोरी हो गया, बुरी बात। तो ये कहते हैं कि मोबाइल अपना होना चाहिए ताकि कॉल गो थ्रू रहे। ऐसी हो बात सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। नहीं, वैसे मैं अपने वो तो स्टेशन पे मुझे भी हूँ। मुझे मालूम है आप अपने अंदाज आरजे वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। गुमान, अच्छा गुमान रखने के भी आपको पता है बिल्कुल सवाब बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं कि ये देखें, ये होते हैं उस्ताद, और कहते हैं कि शागिर्द थोड़ी सी भी गलती ना करे तो for अच्छा, that- आप इतनी दफा उस्ताद बोलेंगे मुझे ऐसा फील होने लगेगा मैं बुजुर्ग आदमी हूं। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं जरूरी नहीं कि बुजुर्गी में आपको उस्तादी मिले। कहते हैं ना, जी हाँ। शऊर के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, शऊर के लिए अकल की जरूरत अकल की होती है। जरूरत होती तो इसी के साथ हम मोहम्मद सुफियान साहब से जी, बिल्कुल। कलाम सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, सुभान अल्लाह। मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के कदम से आ गया जिंदगी का करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, बेशक, बेशक। वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, बेशक। सुभान अल्लाह। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। अरे ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, बेशक अल्लाह। कैसे डूबे सुभान अल्लाह। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम। सुभान अल्लाह। इसमें रहते गे शागे दो आलम, माशाल्लाह, माशाल्लाह। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते गे शागे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, अरे दिल मेरा बन गया है मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में यादें मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं गुलामान अहमद, मैं सगे आस्ताने मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। गुलामान अहमद, मैं सगे आस्ताने मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। काबिले रश्क है मौत मेरी, मेरी, बेशक। हाँ काबिले
रश्क है मौत मेरी और काबिल फख्र है मेरा जीना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सुफियान। मेरे दिल में यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। निशान भाई, कैसी कैसी मीठी आवाज़ें हमारे कराची में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि इनको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी बात से मैं ये कहूँगा कि कल जो आपने बच्चा बिठाया था, यकीन करें कि जाते हुए भी जब मैं और रमीज़ भाई जा रहे थे, रमीज़ भाई पे सहर तारी था उस वक्त भी कि बच्चे की क्या आवाज़ थी, किस तरीके से। और इसी के साथ कान में कहा जा रहा है कि कॉल आई है, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सरदार साबिर अब्बासी बात कर रहा हूँ कराची से। सरदार साबिर अब्बासी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं रहमत सहर में। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आपको 13वीं सहरी बहुत बहुत नात मुबारक। पढ़ी गई है, जो भी नात पढ़ी गई है मेरे सीने में याद मोहम्मद, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। बिल्कुल। और जीशान साहब जी जी, और आज अपने करामत साहब, आप लोग बड़ा अच्छा मेजबानी का फराज अंजाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? नहीं, प्रोग्राम ये चलता रहे आपका, बड़ी खुशी होती है कि जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं इसको एक चैनल और पे भी आप चलाते हैं, वहाँ भी देखते हैं आप करामत साहब को। ठीक 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 ठीक। तो हम भी चाहेंगे कि आप भी हमारी प्रोग्राम की जीनत बने और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं। जी बिल्कुल, बड़ी हमारी ख्वाहिश है ये। जी जी, तो आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम भी हाजिर हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है वो पीसीआर में जहाँ पे आपने कॉल की है वो आपको तरीका बता देंगे। ठीक है जी, जी ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी जो भी मेरे भाई बात कर रहे थे। और कहते हैं कि हमारे कराची की तो माशाल्लाह गुफ्तगू की आवाज़ इतनी प्यारी है, तो जब नात पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह, क्या बात, कहाँ से कहाँ होगी आवाज़। और इसी के साथ साथ राव भाई, चीज़ें जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन होना शुरू हुई हैं, तो मैं एक बात कहूँगा कि हमें फोकसिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बात पे आज कहूँगा कि आज एक गुज़र हुआ और वहाँ पर देखा कि वाकई में फ़्रूट की कीमतें कम होती चली जा रही हैं। तो एक चीज़ होती है इत्तेहाद, जिस पे कहते हैं कि अगर आपका लीडर कहता है किसी चीज़ को, ख्वाह वो, मैं हुकूमती बात नहीं कर रहा, आपके एरिया का लीडर भी अगर आपको कहता है तो उसकी बात पर लब्बैक कहना आपका भी फ़र्ज़ है। हम ये करते हैं कि वो तो ले नहीं रहा, मैं तो अफोर्डेबल हूँ। आप ये सिर्फ देखें कि आप तो अफोर्डेबल हैं, लेकिन जिसके घर में अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसका बच्चा तो भूखा रह जाएगा, वो अपने बच्चे को क्या देगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आपकी ममता या बाप की शफकत ज़्यादा नहीं है। खुदा ने हर एक के दिल में अपनी औलाद के लिए शफकत और मोहब्बत उसी तरीके से डाली जिस तरीके से एक पैसे वाले के दिल में डाली है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बस इतना देख लें कि आपको तो मैसर है, लेकिन अगर आपको महंगा फ्रूट ले जाते हुए कोई गरीब आदमी देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, और जब वो शिकवा करता है अपने रब से तो उसके गुनाहगार आप भी बनते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा या राव भाई कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम ये रोना तो रोते हैं कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, ठीक है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, बातें करके गुजर जाते हैं, अमली एकदम कोई नहीं उठाता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, आप ज़्यादा ना कुछ करें, आपको ईदी आप नहीं बन सकते, ठीक है, आप बशीर फारूकी नहीं बन सकते, इतना करें कम से कम आपकी गली में अगर कोई गरीब रहता है, इतना तो देखो सबको मालूम होता है कि हमारी गली के अंदर गरीब कौन है, ठीक है। अच्छा, वो सफ़ेद पोश कभी आपसे मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा, तो कम से कम अगर मुखय्यर हजरात सिर्फ अपने गली में रहने वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देना, मैं कहता हूँ ये गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी। यही बात है, यही बात है। और राव भाई, मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी असिस्टेंस में, कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास नहीं है, मैसर नहीं है, ठीक है, आपके पास मैसर है, और आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो एक चीज़ कि आप पहले मुझे जांच लें कि अगर मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ। लेकिन मेरी अगर आपसे एक अरसे से गुफ्तगू है राव भाई, तो मैं आके आपसे कहता हूँ कि फ़लाँ गली में 3 घर हैं जहाँ पर राशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब लोगों का एक टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी कि अपने लिए मांग रहा होगा, भाई नीयत पे हर एक की शक मत करें। कहते हैं ना कि आपके पास वाइक मैसर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको भेजा है अपनी रहमत से कि वो उस घर की मदद करे आपके तवज्जुह से। इसके भी दर्जात आपके बोला था। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। इसी के साथ एक कॉल है और अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरी बहन बात कर रही हैं? सर, मैं कौसर बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन हूँ। माशाल्लाह कौसर के आपको खुशामदीद कहते हैं रहमत सहर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। राव करामत को भी मैं सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं कौसर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और लास्ट ईयर मैं सनगर जी हाँ। आई थी। जी हाँ। तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना पसंद किया जाता है और लोग इतनी तारीफ करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे लोग जो हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, वो इतनी नूर की रोशनी फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मोहब्बत है ये आप लोगों की, देखने वालों की, जो आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत दिलों में अल्लाह ताला डालता है, क्योंकि हम काम जो कर रहे हैं वो अल्लाह रसूल का काम कर रहे हैं बैठ के। देखिए राव करामत, ये तो आपको भी पता है कि आजकल के दौर में लोगों ने इस चीज को पेशा बना लिया है कमाने का। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल कौसर सही करिए आप। आप लोगों ने इस चीज को पेशा नहीं बनाया। आप लोग नूर की रोशनी जिस तरह फैला रहे हैं, लोग स्पेशली टाइम देखकर बैठ जाते हैं टीवी खोल के कि अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रही हैं आप। बहुत मुझे जब लोगों ने बताया कि आप लोग का प्रोग्राम वेनस पे भी आ रहा है और मेट्रो पे भी, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि ये मेरे अपने लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ जो ये मेरे भाई बैठे हैं, इनका भी मैंने आज देखा प्रोग्राम। आज निशान साहब। मैंने फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, तो सर बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोग। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कमी है। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। और आप लोग ऐसे ही देखते रहें, अप्रिशिएट करें। कहते हैं कि आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसी तरीके से आप लोग इंजन का काम करें तो राव भाई मजीद आपको कहते हैं ना कि तोहफे देते रहेंगे इसी तरीके से। अच्छा, मैं इनके बारे में बताता चलूँ, ये एंकर पर्सन है खुद, और मैं आपको ऑन एयर में आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप वक्त निकालें और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मेहरबानी राहुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आमीन। आऊंगी तो स्पेशली किसी बहुत बड़ी सरप्राइज के साथ इंशाल्लाह। इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। जीते रहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और जी जब कहते हैं कि कॉल्स आती हैं तो एनर्जी और बूस्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल कहते हैं कि जो कॉल्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, ख्वाह वो टीवी प्रोग्राम हो, लाइव की बात कर रहा हूँ, या वो आपका रेडियो का प्रोग्राम हो, तो हम इसको कहते हैं कि आप एक एसेट का काम करते हैं, कि जब तक बैटरी में एसेट नहीं होता तो वो काम नहीं कर पाती। और हम साथ साथ ये चीज़ें बिल्कुल स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड है, आप कॉल करें। और जो लोग भी आना चाहते हैं प्रोग्राम में, अगर आप चाहते हैं, देखें आजकल दौर ऐसा है कि किसी के पास टाइम नहीं है, अखबार पढ़ने का रुझान बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिस पर एक बड़े बड़े से एड्स आते थे, यहाँ पर राव करामत की दुकान यहाँ खुल गई है, राव करामत वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा ही होता था। ऐसे ही अब नहीं होता। तो बिल्कुल जनाब, आप आकर अपने प्रोग्राम की, अपने कारोबार की प्रमोशन कर सकते हैं। वो बच्चियाँ या वो हजरात जो कि किसी उज़र की वजह से घर से कहते हैं ना कि होम बेस्ड खाना दे रही हैं, अब बिल्कुल आइए, यहाँ पर मौजूद है राव करामत के। और साथ साथ एक और कॉल मौजूद है, तो बाकी भी जाते मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं फरहान बात कर रहा हूँ। जी फरहान, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, आपको खुशामदीद कहते हैं रहमत सहर में। बहुत शुक्रिया। जी, क्या कहना चाहेंगे फरहान? माशाल्लाह आप दोनों बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं आज, माशाल्लाह आप दोनों। अरे वाह वाह। असल में हुस्न आपकी आंखों में है। अरे, और प्रोग्राम तो माशाल्लाह आपका 4 साल लगा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब नातख्वां जितने भी हमारे यहाँ पे सारे मौजूद हैं, उन्होंने कोई 50 चांद लगा दिए हैं इस प्रोग्राम को। अपनी खूबसूरत आवाज में हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ सुना रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि नबी और खुदा का दर आपको बुला रहा है। क्या बात। और आपका करामत भाई, जी 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 सर, जो आपका बज़्म सनागर, ये भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। हमें भी कोई आने की थोड़ी तौफीक अता फरमाए हमारे को। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म तो तमाम नाज़खानों के लिए हाजिर है। स्क्रीन पे नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप में टैलेंट है तो आप जरूर आएंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो फिर आप बता दें मुझे कब?
हमारा नंबर है 034912300232। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप अपनी नात ऑडियो या वीडियो सेंड कीजिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप यकीनन हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और वही जी राव भाई एक दफ़ा नंबर फिर आराम से दोबारा बता दें। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ 034912300232। बिल्कुल जी, इस नंबर पर आपने अपनी जो भी आप नात पढ़ते हैं उसको व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद जो है आप में अगर टैलेंट होगा तो राव भाई आपको ज़रूर मदद करेंगे। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रहमत सहर में, और जहां पर सेगमेंट शुरू होने जा रहा है सरकार की नातें वाह भाई वाह। और ये खूबसूरत नाम आपने तजवीज़ किया इसके लिए, और कहते हैं कि जब आप सरकार की नातों के बाद वाह भाई वाह कहते हैं तो राव भाई इसका भी सवाब मिलता है। कहाँ कहाँ छोटी छोटी कहते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो नॉर्मल डेज़ की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन रमज़ान के जो ख़ास प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो नात का सेगमेंट लेकर चलते हैं या नात के ऊपर बात करते हैं या खुदा की हम्दो सना करवाते हैं, तो वो हमेशा हर पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हैं कि बोलने वाले को भी सवाब मिले। तो इसका अजर भी आपको मिलता है कि जो लोग बोलते हैं कि सरकार की नाते वाह भाई वाह। तो बिल्कुल जनाब, नातिया मुकाबला शुरू करते हैं, और इसके साथ आज जनाब भाई 2 पार्टिसिपेंट दो है, और मोहम्मद नदीम नौशाही साहब आप जो हैं वो जजमेंट करेंगे। लेकिन इतनी शफकत है इनके चेहरे में कि आज तो मैं कहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो झंडे गाड़ कर जाएंगे यहाँ पे। तो पहले पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं। जी बिल्कुल। पहले मुकाबले के जो शरीक हैं उनका नाम है उसामा कादरी साहब। माशाअल्लाह जी उसामा कादरी नजराने अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या जूद व करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का माने, और इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शगबत तेरा, तुझ पे हर चंद वो गए कदरो फजाइल में रफीक, करना सीराज मगर फिक्रे रजा की तौसीफ, पास गए उसके शफाअत का वसीला भी बाकी, तेरी सरकार में लाता है रजा उस को शफी, जो मेरा वो से है और ला
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपने माशाअल्लाह से नात पढ़ी। जी ज़ीशान भाई, हमारे दूसरे कौन है आज के मुकाबले हमारे के शरीक? दूसरे मुकाबले के शरीक है हसन कादरी, उनको हम दावत देंगे कि वो भी आकर। अच्छा माशाल्लाह, दोनों कादरी हैं, कादरी बा मुकाबला कादरी। बिल्कुल जी। और मैंने पूछा कि आप दोनों, कहते हैं हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो दोस्तों में मुकाबला है आज। दोस्तों को एक साथ और एक जैसी ही आपकी पसंद है कि आपने भी नातख्वानी को चुना, तो ये अल्लाह का आप दोनों पर ख़ास करम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोनों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। मैं उसामा कादरी को भी बोलूँगा कि आप भी डाइस पर आएँ, ताकि मोहम्मद नदीम नौशाही साहब आप दोनों को बता सकें कि आपने कैसी अंदाज़ तलफ़ुज़ में कहाँ गलती थी और अदायगी में कहाँ गलती थी। बाकी नात के ऊपर तो हम मार्क्स दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बात वही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ के लिए मुकाबला जो है वो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हौसला अफजाई की बात होती है। तो माशाल्लाह ये जज्बा भी है इनका ना, तो उसमें आवाज़ तर्ज का सब मामलात होते हैं। बेटा सबसे जो अहम चीज़ होती है वो अदायगी होती है। अल्फाज जो है नात शरीफ में तोड़ कर नहीं पढ़े जाते। जैसे कि आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था अर्श, तो आपने अर्श को दो हिस्सों में पढ़ा, यानी सांस ली बीच में ना, तो पूरा लफ्ज़ एक सांस में आपने लेना है। एक लफ्ज़ सरकार, सर का, सरकानी, सरकार, एक ही उसमें, यानी सांस तोड़नी नहीं। अगर जब सांस तोड़ देंगे तो उस लफ्ज़ के मायने चेंज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात माशाल्लाह आपने अच्छा ही पढ़ा, लेकिन मज़ीद इसमें बेहतरी लाएं, और हो सके तो किसी अच्छे उस्ताद को आप देखें, उनसे आप बाकायदा क्लासेस लें। आपका सांस का भी मसला था, काफ़ी गले का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो बहरहाल मैं उसामा कादरी जो है माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बेहतर कोशिश की है। सांस का मसला है, कोई प्रॉब्लम होगी, तबीयत सही नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ये एक बात मैं पूछूं आप लोगों से, आप लोग प्रैक्टिस करते हो घर पे? रियाज जिसको उर्दू में बोलते हैं। जी हाँ, रियाज जरूरी है। रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो माशाल्लाह आपके सामने बैठे हैं ये रियाज करके आज इस मुकाम तक पहुँचे। कोई भी ऐसा नहीं होता कि सोकर उठे और कहीं पर पहुँच गए, नात
पढ़ना शुरू कर दी। और उस्ताद लाजिम, और वो उस्ताद ही उनको फिर रियाज का तरीका भी बताएंगे और उनको बताएंगे किस तरह आपने क्या करना है। बिल्कुल जी, उस्ताद लाजमी है। तो फिर फाइनल एक दफा अनाउंस कर जी, देना। बस मैं यही कहूँगा उसामा कादरी माशाल्लाह, उसामा कादरी हमारे साथ आगे जा रहे हैं। जी, आगे। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हसन, आपकी एक दो जगह मैंने भी फील किया जब आप नात शरीफ पढ़ते हैं ना, नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें बहुत ज्यादा फ्लोज नहीं देते, बहुत ज्यादा आ रहा था। ये मैंने फील किया, शायद मैं गलत हूँ तो सॉरी। तो आप जब जाते हैं तो तर्ज पर नहीं, प्रॉपर अंदाज में पढ़ते हैं कि सुनने वाले की कानों में रस घुल जाए। हाँ, हसन ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हसन बेटा जब मुकाबले में आप जाते हैं ना, तो फिर आप तलफ़ुज़ पे भी, अदायगी पे भी, अपने जो लफ्ज़ हैं उन पे भी गौर करें। मिसाल के तौर पे आप सलीका होता है ना, आप सलीका बोल रहे हैं, इसी तरह हालात नहीं करें, अब हालात, तो इस पे भी थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा। ठीक है जी, वैसे आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और आपने आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे नाते सुनानी है सबको, और अगले साल फिर जब हम मिलेंगे तो बेस्ट वन में आप होंगे इंशाअल्लाह। आपको उसामा बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने भी मुकाबला अब सख्त से सख्त तरीन होता चला जाएगा। ये तो शुरू के आपको देखा जा रहा है, और इसके बाद जब हम क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल में जाएंगे तो वहां पर आपसे भी पूछा जा सकता है कि फाइनल में बहुत अच्छी आवाजें हैं हमारे पास। बिल्कुल, और इन्होंने जजेस का पैनल रखा है, निखारने की बात है, बस निखर जाए। और ये भी आज अगर हमारे साथ बैठे हैं तो अभी आपको सिर्फ जज कर रहे हैं, बाद में पूछेंगे ये किसने लिखा था, किसने कंपोज किया था, किसने पढ़ा था इसको, तो ये सब चीजें, अच्छा ये तो पढ़ा इन्होंने था, इसको रीकम्पोज किसने किया या रीमेक इसका किसने किया, तो ये सवालात भी आ सकते हैं, इसके लिए आपने तैयार रहना है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ राव भाई, अब जो नात का मैंने कहा तो सुन सकते हैं? बिल्कुल, इजाजत नहीं तो मोहम्मद नदीम शाही साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो नात आप मुझे सुनाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, आपने बताया है कि किसी बच्ची ने पढ़ा था ये कलाम, नाबीना। जी जी बिल्कुल। तो ये जो कलाम लिखा है ना, प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी नाबीना थे, और उनके बड़े मशहूर कलाम हैं, और यही वजह है कि उनके ज़्यादातर कलाम में आँखों की बात होती है, कोई ना कोई आँखों की। और उनके बारे में मशहूर है कि आप जब पहली मरतबा उम्रा शरीफ करने गए तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो क्या दुआ कर बैठे कि परवरदिगार कि मुझे एक लम्हे के लिए मेरी बिनाई वापस दे दे, मैं तेरे महबूब का रोज़ा देखना चाहता हूं। तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बताया, अभी भी वो शायद मौजूद होंगे, तो उन्होंने बताया कि उसी लम्हे उनकी बिनाई वापस आई। तो मैं समझता हूँ ये तो सरकार की इनायत है, करम है, ये तो उनके गुलामों के गुलामों का काम है। तो बहरहाल हमारे लिए तो बड़ी बात है। तो ये कलाम भी जो आपने हुक्म फरमाया है, तो इसमें भी कुछ आँखों का अहवाल है, पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सैयदना व मौलाना मुहम्मद, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर सजा लो, मेरे घर में अंधेरा बहुत है,
پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، اور روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور ایک نابینا شخص جو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہم دیکھنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میرے آنسو میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جان سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل سجا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل سجا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں اس نعت کے اندر وہی چیزیں سما سارا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ دل ہونا چاہیے، آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، مہمان آپ کو وہ خود بنا لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں راؤ بھائی کہ اگر آپ ایک ارادہ پختہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، تو رب پھر آپ کی اس التجا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
अल्लाह ताला ने भी ये कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपना नबी भेजा है। सुभान अल्लाह। तो बस मैं सब सुनने और देखने वालों से यही कहूँगा कि आप लोग भी जब भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाए तो सरकार से ये दुआ करें कि आप हमें अपने घर का मेहमान करें, कि हम उन गलियों में घूमें कि जिसमें आप घूमा करते थे, हम जम जम के आब जमजम पिएं, क्योंकि उससे मीठा पानी दुनिया में मैसर नहीं है। और साथ साथ अब हम चलेंगे भाई की तरफ, रिजवान भाई की जानिब। जी रिजवान भाई, आप सवाल आपका सर। हाँ, असल में पहले नाजरीन को बता दें कि असल में वाक़या क्या हुआ। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि रिजवान ज़ुबैरी साहब आए और कहने लगे कि जी कोई ख़ातून थी सेट के बाहर और उनको नज़र आई है और बाकी से यहाँ जितना भी हमारा स्टाफ है किसी को नज़र नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहूँगा रिजवान ज़ुबैरी साहब, वो कौन खातून थी जो सिर्फ आपको नज़र आई, हमें नज़र नहीं आई? तो ये तो मतलब कल हमारा जो आलिम और सनागर का जो टॉपिक था वो जिन्नात के ऊपर था। अल्लाह बिल्कुल। और कल मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब ने कहा कि जिन्नात होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको नज़र आई, बाकी किसी को नहीं नज़र आई, बाकी मौजूद हम सब थे। तो मैं फिर से दोबारा पूछूंगा रिजवान साहब, किस तरह की थी वो? आपने देखा था कोई पाँव उल्टे थे उनके, कुछ इस तरह का मामला था? और जितनी पिक्चर्स भी आपने दिखाई वो भी कह रहे हैं कि ये थी ही नहीं। हमने अपने स्टाफ की जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे स्टाफ में, सबकी हमने पिक्चर दिखा दी, शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो, नहीं ये नहीं थी, कोई और थी। अब रिजवान साहब छुपा रहे हैं या डर रहे हैं, बता नहीं रहे, तो कुछ बताएं इस बारे में, हुआ क्या, असल वाकया क्या हुआ? अच्छा ये बताएं वाकया क्या हुआ। हम किसी को भी नहीं बताएंगे। नहीं वाकया तो बताएं, असल में आपके साथ हुआ क्या था, वो खातून कहाँ से आई थी, किधर से आई, किधर चली गई, ये थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। मैं माशाल्लाह पिछले साल भी आया था, तो माशाल्लाह, नहीं आप आते रहते हैं माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको अपना कार्ड दे दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं वो खातून कहाँ से आई, वो जिनको खातून को दिया? चले, असल में घबरा रहे हैं थोड़े से रिजवान भाई, थोड़े से शर्मीले भी वाकई में, चले जाने देते हैं। मुझे लग रहा है कि कल जो हमारा सेगमेंट हुआ था आलिम और सनागर में जिन्नात वाला, शायद उसका कुछ असर है। और वैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि जिन्नात होते हैं और जो जिन्नात का रद्द करेगा वो कुरान का रद्द करेगा और ये गुनाह करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिन्नात वाकई में है, लेकिन बस आप कहते हैं कि वो आपको तंग नहीं कर रहे तो आप उनको तंग मत करें, क्योंकि इसके लिए राव भाई ये भी कहते हैं कि जब एक महफिल में थे तो वहाँ पे कह रहे थे कि जब आपको कोई बार बार पॉइंट आउट करेगा तो गुस्से में तैश में आप भी आते हैं, तो वो भी खुदा की मखलूक है, उन्हें भी जाने दें और आप अपना काम करते चले जाएं। और बाकी यहीं पर राव भाई को देखिए कितना, एक कहते हैं ना कि जो एक ओहदे पर फाइज होते हैं और जो बड़े दिल वाले होते हैं तो वो छोड़ देते हैं बातों को। तो ये राव भाई यहाँ पर आपने ये भी मिसाल कायम की कि आपने जो है वो रिजवान भाई को कहा कि छोड़ें, चले। अच्छा एक बात हो, जैसे आपने कहा ना तंग करते हैं, जैसे इंसान तंग हो जाता है, तो मैं अब डर रहा हूँ कि मैं बार बार उन खातून का जिक्र कर रहा हूँ। तो बहन मैं माजरत चाहता हूँ, बहन आपसे मैं माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह बिल्कुल जी, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि स्क्रीन्स पर नंबर डिस्प्लेड हैं, मुझसे 5 से 6 लोगों ने मैसेज किया जो मेरे पर्सनल पे, तो भाई स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड हैं, आप उस पर राब्ता करके यानी हमें कॉल कर सकते हैं। और आपको मैं प्रोग्राम के सेगमेंट में आने के लिए नंबर जो है वो राव भाई आप दोबारा रिपीट कर दें। जी हाँ, अगर आप में टैलेंट है, आपकी अच्छी आवाज़ है और आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप 0349 1230232 पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या अपनी वॉइस का ऑडियो और वीडियो आप मैसेज भेजेंगे। अच्छा एक बात और मैं बताता चलूँ, अक्सर लोग करते क्या है कि वो जो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई होती है आवाज़ वो भेजते हैं, तो विदाउट इको साउंड आप आवाज़ भेजेंगे ना तो फिर हमें पता चल सकेगा कि आपकी आवाज़ कैसी है। आप इको साउंड सिस्टम के साथ भेज देते हैं तो उसमें हम पहचान नहीं कर पाते आवाज़ की, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर अंदाज़ा नहीं होता। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि राव भाई कहते हैं कि आपने बुलवाया नहीं, तो जब जो बच्चे अपनी सिंपल वॉइस भेज रहे हैं पहले उनको मौका दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इको के साथ नहीं पढ़ा। और फिर ये नाइंसाफ़ी भी होगी कि जो बच्चे आपकी बात सुनकर आपको सिंपल वॉइस भेज रहे हैं फिर आप इको वालों को पहले बुला लें, तो ये भी नाइंसाफ़ी होती है। और कहते हैं कि ये एक अमानत है जो कि ट्रस्ट करके वो आप पर भेजते हैं, यानी राव भाई को भेजते हैं, और अमानत में ख़यानत खुदा को भी पसंद नहीं है। और साथ साथ यही चीज़ कि आप राव भाई ये सिर्फ नात के लिए है या वो लोग सम टाइम कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आना चाहते हैं अपने प्रमोशन के लिए, कुछ ब्यूटिशियंस हमारी बहनें हैं या भाई हैं जो आना चाहते हैं, तो वो भी इस नंबर पर? देखिए मैंने तो कहा हमारा प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, चाहे किसी भी फील्ड से कोई ताल्लुक़ रखता हो
کوئی اگر اپنی کاروبار کی پروموشن کروانا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. اس کے لیے بھی یہی نمبر ہے جو میں نے کہا ہے اور ہماری اسکرین پہ بھی وہ نمبر چل رہا ہے. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ کالنگ نمبر بھی موجود ہے. آپ کال کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا یہ بھی میں آپ کو کہوں, میں نے اپنے ٹیچر سے نہیں پوچھا, لیکن اگر آپ کی کوئی نعت کی فرمائش ہے تو وہ بھی آپ ہم سے سن سکتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں نعت خواہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہم یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں تو صرف آپ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمین سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور جی اب کیا قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں, بالکل ایک کلام شامل کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ قاری صاحب سے بات کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جتنے میٹھے انداز میں آپ پڑھتے ہیں اور جتنے میٹھے انداز میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ساتھ ساتھ ہم کھو سے جاتے ہیں. میں محمد ندیم نشاہی صاحب سے یہ بات کروں گا کہ ہم جو ہیں اگر بات کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں, اور لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ کے زندگی میں اور ذہن پہ کچھ لوگ نقش چھوڑ جاتے ہیں, وہ حسن اخلاق ہوتا ہے. اور آج کل کے جو دور ہے اس کے اندر ایکو جو ہے یا پراؤڈنس جو ہے یا چہرے پہ کرختگی جو ہے اس کو رکھنا ایک فیشن سمبل بن گیا. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا ہتھیار جو کہتے ہیں وہ اخلاق ہے. آپ اخلاق سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اپنے اندر زیادہ بردباری رکھیں گے, زیادہ اپنے آپ کو سمجھیں گے میں بہت کچھ ہوں, جہاں آپ کہیں کہ میں, جہاں عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے, تو پھر اس کا جو دوسرے پر اثر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اور جہاں ہم روب سے بات کریں گے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو سامنے والا بھی, جیسے ابھی مقابلے کا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی سخت قسم کا بندہ بٹھا دیں تو وہ پھر بیچارہ جیسے انٹرویو دینے جاتے ہیں کہیں جاب کے لیے, تو آگے کوئی کرخت لہجے والا بندہ بیٹھو تو ویسے ہی جو ہے بندہ نروس ہو جاتا ہے. ایسا ہی تو اخلاق جو ہے وہ تو بہت اہم چیز ہے. زندگی کی وہ کنجی ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ فتح کے ہم کنار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. عمران بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت سحر میں. اور کیسا گزرا لاہور کا رمضان؟ جی اچھا گزرا, بہت اچھا گزرا. ادھر بارشیں بہت ہو رہی ہے لاہور کے اندر. ہاں جی لاہور میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. پہلے رمضان سے شروع ہوگی بارشیں, تو آپ کی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو پنجابی چ گل کریے پھر. تسی لاہور تو کیوں نہیں پنجابی چ گل کرا؟ کیا بات ہے. نہیں اردو میں گھر میں ساتھ. نہیں پنجابی چ کر لو, میں نے پنجابی بھی آندی, مسئلہ کوئی نہیں. پنجابی میں کر لیں. پنجابی چ کرو. میں دسو کہ کس طرح دے روزے گزرے. تو اسی تے ٹھنڈیاں چھم چھم تہاڈے اوتھے ہواواں چل رہی ہیں تے زبردست ودیاں جی بارشاں ہو رہی ہیں. تو دسو کہ تانوں تو پتہ بھی نہیں چلدا ہوئے گا روزے دا. بڑی دیر بارشیں, بہت دیر دی ہو رہی ہیں بارشیں. پہلے رمضان کی بارشیں ہو رہی ہیں ایسے. تسی کراچی بھی کال دو تھوڑی جی بارشاں, تسی آپے مطلب لطف اندوز ہونا ہوتے نا. ایسے بھی بارشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں کراچی تے اپنیاں بارشاں ہونے, پسینے ہی بھاگ دے اور کچھ نہیں. واہ 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 واہ. تو اور کچھ کہنا چاہوں گا, مطلب ہمارے جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ, راؤ بھائی جو ہے وہ آپ ان سے بات کریں گے. کوئی فرمائش ہے آپ کی نعت کی؟ نعت سنیے. نعت سنیے. کون سی نعت سنی ہے میرے بھائی نے؟ یہ میں نے دل میں تجھے رکھ لوں. دل میں تجھے رکھ لوں. تو بالکل اس دل علاوہ کچھ کہنا چاہو گے میرے بھائی؟ بس یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شوق سے دیکھتے ہیں سر کروا دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک سارے کارکنوں میری طرفوں بہت سارا سلام. اپنا خیال رکھو, خوش رہو. تو کریں ہمارے گھر ہم لوگ آ کے. دوبارہ بولیے گا, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ افطاری کریں ہمارے گھر لوگ آ کے. واہ واہ, افطاری کی دعوت. میں افطاری کی دعوت ہے, سحری پھر یہاں کون کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور. اللہ اور جن میں ویسے چکر لگ رہا ہے, تو بعد میرا تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جی سرکار, آپ تو کو پنجابی بھی ماشاءاللہ سے بولنی آتی ہے, میں نے صرف سمجھ آندی ہے. اچھا جی, تو بالکل انہوں نے جو نائب کی فرمائش کی ہے اور رضوان صاحب سے ہم سنتے ہیں. اور ساتھ ساتھ راؤ بھائی, میں پنجابی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, اندازی جا کھانا دل میں تجھے رکھ
जाना आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है मैं शर्म में भी कह देना मैं शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना दीवाना मैं शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना बस इतना करम करना ए चश्मे करीमा ना इतना करम करना ए चश्मे करीमा ना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना दिल में तुझे रख लूं क्यों छुपा बैठे करके मुझे दीवाना बेखुद दिए देते हैं अंदाज़ की जाबाना सुभान अल्लाह, क्या बात है रिजवान भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ में मज़ीद और रिजवान भाई बरकत अता बहुत फरमाए। बहुत शुक्रिया कि मैंने अभी कहा कि आप कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं नात की, और देखिए कॉल आई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने नाते रसूल मऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दी। और इसी को कहते हैं कि नबी के वसीले से आप कुछ भी बयान करते हैं फ़ौरन रब कबूल कर लेता है। इसका नमूना आपको सामने ही मिलता है जी। और अब हम कारी उबैदुल्लाह शाह साहब से ये कहेंगे कि आप इतना मीठा पढ़ते हैं कि दिल चाहता है कि बस आपसे सुनते चले जाएं। और ये कहते हैं कि आप जब रुकते हैं ना तो उस वक्त क्यों जल्दी ख़त्म कर दिया कलाम, क्यों आप रुक गए। तो ये फीलिंग मेरी नहीं, सबकी होती है। ये रावे भी ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और कारी साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा, कारी साहब ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब आपका दिल चाहे आप इस प्रोग्राम में आया करें। कौन सी फरमाई जी? अच्छा सभी कौन सी नात कौन सी है जी? पीसीआर से बोला जा रहा है जी। जी बोलिए। खुशाबुद्दीन साहब की
सबियुद्दीन सबी रहमानी की खुशावुद्दीन खुशावुद्दीन, बिल्कुल खुशावुद्दीन हरम पाक की आती है। अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है। अब मसला ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट ये हो गई और एक रिक्वेस्ट और है जो आप जब भी कल सुन लेंगे, कल इनको हाँ invite जी, करते मैं हैं आपसे रिक्वेस्ट इंशाल्लाह। पहले से कहते हैं कि रिक्वेस्ट पहले से देनी चाहिए, उसको एक्सेस होने में टाइम लगता है। एक ये वाली नात होगी और एक मेरा फिर करम हो गया मैं मदीने चला। मदीने चला, वाह वाह वाह। ठीक है जी, बिल्कुल जी। एक कॉल है हमारे साथ और देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, कहाँ से कॉल किया आपने? भैया मैं कोरंगी क्रॉसिंग से बात कर रहा हूँ, अंडरवाटर से हामिद फिरोजी। हामिद फिरोजी, जी जी। कैसे मिजाज है मेरे भाई? 13वां रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको भी मेहर मुबारक हो। क्योंकि मैं आपको बहुत माशाल्लाह डेली देखता हूँ मेरे ऊपर, और हमारे इलाके के जो वो है मुफ्ती साहब, मुफ्ती हो साहब, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं मेरे को। माशाल्लाह। और सरकार की रातों में हर वक्त घूमता रहता हूँ, तो मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई फरमाइश मेरे भाई आपकी? जी जी हाँ, मेरे फरमाइश करनी थी कि वो एक लाख देके उनका मंगता हूँ जो मुझे मंगता होने नहीं देते। सही सही, उनका मंगता हूँ वो मुझे मंगता होने नहीं देते। इसके ठीक है जी, ठीक है, मैं बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे भाई? बस इसके अलावा ये कि बस हमें खूब अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मक़सद का अशरा है। बेशक। अल्लाह पाक हम सबकी मक़सद आमीन 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 हमारा मकाम अदा करना। आमीन आमीन। और बिल्कुल जी, और इसी के तरह प्रोग्राम के साथ जुड़ना है और अपनी मौजूदगी का एहसास कॉल के थ्रू आपने हमें दिलाना है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा, ये जो फरमाइश है ये मैं सुनना चाहूंगा नदीम साहब से, लेकिन पहले कलाम लेंगे। बिल्कुल कलाम लेंगे और उसके बाद नदीम भाई आपकी तरफ नदीम साहब से। अल्लाह ने ये शान क्या बात, बढ़ा वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, पाने को तो खुर्शीद को कमर चरख ने पाए, पाने को तो खुर्शीद को कमर चरख ने पाए, अरे क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, आलम में लुटाता हूँ कमाई तेरे दर की, आलम में लुटाता हूँ कमाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान
بڑھائی تیرے در کی محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. ماشاءاللہ. اور یہاں پر تو پھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ تعریف کے وہ الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں. اور کہتے ہیں کہ خوبصورت انداز میں کلام پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کو گرویدہ کرنا بھی ثواب ہے. اور اب راؤ بھائی میں کالر کی فرمائش کی طرف جی بالکل ان کا منگتا ہوں کلام کی فرمائش ہوئی. بالکل جی. لیکن کلام سے پہلے جی جی آپ بولیں. نہیں آپ بولیں. نہیں آپ بولیں. ایسا نہ آپ میں پورا پروگرام نہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ راؤ جی بھائی ایک چیز اور کہ ہمیں جو جتنے بھی کنفیوژنس ہیں ہمارے یہاں پر ایک سیلف بہت زیادہ ہے. میں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے اندر جب میں ختم ہو جائے گی تو شاید ہم ان چیزوں سے آؤٹ کم ہو جائیں گے. اور بالکل جناب میں دیکھنے والوں کو یہی بولوں گا کہ جیسے اب کالر بڑھتے چلے جانے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرمائشیں آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اور صرف نعتیہ مقابلہ نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ کو تقریر اچھی آتی ہے یا آپ کسی بھی ہنر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور راؤ بھائی ایک سوال ہوا تھا مجھ سے اسٹیشن پر کہ ہمارے اندر سلائی کا ایک ہنر ہے تو ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام پہ. تو میں نے کہا جی بالکل راؤ کرامت صاحب کے پیج پر جائیں اور ان کو میسج کریں. اور آپ جب میسج کریں تو مجھے اسکرین شاٹ بھی بھیج دیں تاکہ راؤ بھائی کیونکہ 2 سے 3 ٹرانسلیشنز میں بزی ہیں اور پھر چیزوں کو مینیج کرنا اور گھر کو مینیج کرنا اور ساتھ ساتھ چیزوں کو اکوموڈیٹ کر یہاں پر لے کر آنا تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ پرابلمیٹک بھی ایسا ہی. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ راؤ بھائی خود تو لائن اپ کسی کو کر نہیں رہے. میں یہ دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نعت کا جو ماحول ہے ہزاروں نعت خواں اس کے اندر ہے اور الحمدللہ سب مجھے جانتے ہیں. بالکل ایسے میرے پاس صبح سے رات تک میسیجز آتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے 2 ٹرانسمیشن کرنا جی تو اس کی اپنی مصروفیات پھر سب چیزیں دیکھنا فارمیٹ بنانا سارے معاملات دیکھنا. تو میں آج یہاں موجود ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھنے والے ناظرین کو بتاؤں گا کہ جن کے میسیجز کے میں جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اس لیے اسکرین پہ میرا نمبر نہیں چل رہا. ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں, جو ہماری اسسٹنٹ ہے وہ دیکتی ہیں. تو انشاءاللہ 1-2 دن لگتے ہیں جواب آنے میں لیکن جواب ضرور مل جاتا ہے. اور ابھی آپ نے بات کی تقریر کی تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آڈیشن کیے تھے تقریری مقابلے کے تو وہ کہاں گیا. تقریری مقابلہ بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا جس کا نام ہے سیگمنٹ کا شہ سوار خطاب. جی بالکل جی. اور ساتھ ساتھ یہی والی چیزیں کہ دل نہیں ہارنا. ابھی تو 13واں روزہ ہے اور میدان موجود ہے ہمارے پاس اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کو سلیکٹ کیا ہو کہ ہم آخری عشرے میں آپ کا جو تقریری مقابلہ ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کب فارمڈ کرنا چاہتا ہے. بالکل جی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا, میرے آقا
کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا اور راؤ کرامت بھائی یہ شعر خصوصی طور سے آپ کے لیے میرے آقا نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں غرور کا نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا کیونکہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ اور ایک سما سا بن گیا ہے اور کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بریک پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں تمام آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت انداز میں نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور رضوان زبیری بھائی آپ نے خوبصورت انداز میں ہم سے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کیا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ خدا کے ایک اشارے سے تقدیر بدل جاتی ہے اس بات کا یقین رکھو کہ وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے اسی کے ساتھ ایک بریک السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से इतनी दूर फरमा देता है कि जितना एक कौवा बचपन से अपने उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। शहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर देखने वाले तमाम नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है शफ़ाअत, शफ़ाअत मुस्तफ़ा, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुमताज़ मजहबी शख्सियात, जिनमें शामिल हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक ऐसा है कि काश जिस महबूब की शफ़ाअत का ज़िक्र हो रहा है और अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके उन जिनकी वो शफ़ाअत करे, अल्लाह हमको भी उनमें शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ज़ाहिर है कबूलियत की घड़ी है रमज़ान का महीना, इस वक्त आखिरी पहर में अल्लाह आसमान दुनिया में जलवा और कबूलियत की घड़ी और हमारी ये दुआ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि हुज़ूर की शफ़ाअत होगी हमारे लिए इंशाअल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं अल्लामा सईद रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़ैदी साहब? ठीक है। आपको भी हमारे इस सेगमेंट बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके बराबर में मौजूद हैं सना ख़्वाने रसूल जनाब सैयद कासिम शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको भी हमारी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रो साहब आपने? करम करम मालिक का। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका तारुफ सबसे आखिर में कराया तो सवाल सबसे पहले करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये शफ़ाअत होती क्या है, शफ़ाअत की तारीफ़ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो इस मौजू के इंतखाब पर आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये मौजू बड़ा ही ज़रूरी है और अहमियत का हामिल है। शफ़ाअत का मतलब है सफारिश, सादा लफ्ज़ों में। क्या बात है। और हर बंदा एक दूसरे की सफारिश करता है और सफारिश के लिए हमेशा उसी के पास जाया जाता है जो प्यारा होता है, जो महबूब होता है। सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया की सफारिशें हैं, दुनिया की शफ़ाअतें हैं, लेकिन उस शफ़ाअत पे कुर्बान जाएं जो शफ़ाअत अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता होनी है। और महबूब दुनिया में भी शफ़ाअत फरमाएंगे और हौज़े कौसर पर भी शफ़ाअत फरमाएंगे, मैज़ान अमल पर भी शफ़ाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं पहले कुरान से पूछ लेता हूँ कि कुरान में कहीं इसका कोई तज़किरा है या नहीं है। सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीम आपके सामने पढ़ी है कुरान करीम है, सूरत निसा है, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 85 है। कुरान कहते हैं मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। जो कोई अच्छी शफ़ाअत करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा, और जो कोई बुरी सफारिश और बुरी शफ़ाअत करेगा तो उसके लिए उससे हिस्सा होगा। कुरान ने कह दिया। और पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 है। यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, कि आपको आपका रब मकाम महमूद पर मबूद फरमाएगा, फायज फरमाएगा। ये मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने भी फरमाया, बुखारी शरीफ जल्द नंबर 2 नंबर 682 में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क़यामत के दिन मकाम महमूद पे फायज फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और हम दिन में 5 मरतबा अजान के बाद हमेशा दुआ मांगते हैं और उसमें ये कहते हैं वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। अच्छा, ज़रूरत यह है कि मकाम महमूद क्या है और इससे क्या मुराद लिया जा सकता है और इससे क्या मुराद है। मेरे आका से यही सवाल किया गया। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुइला, आप फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद किसे कहते हैं? बावाला तिरमिज़ी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 और यही हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 456 पे मौजूद है।
اور तफसीर तबरी जल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 97 पे भी ये रिवायत मौजूद है, और मजमा ज़वाइद जल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 377 पे भी ये बात मौजूद है, और मुस्तदरक हाकिम जल्द 2 सफ़ा 463 पे भी ये रिवायत मौजूद है। माशाअल्लाह, अल्लामा साहब क्या बात है मुफ्ती साहब, एक तो आप जो हवाले देते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉलर की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी मुफ्ती साहब। जी, मैंने जो आपको हवाला जात अर्ज किए हैं, मेरे आका से पूछा गया या रसूलल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मकाम महमूद उस मकाम का नाम है जहां अव्वलीन आखरीन को जमा किया जाएगा और वहां पर सबके सामने अजमत मुस्तफ़ा को बयान किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, उस अजमत मुस्तफ़ा को जब बयान किया जाएगा तो वहां पर मेरे आका अपने चाहने वालों, अपने कलमा पढ़ने वालों की शफाअत फरमाएंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला मेरी उम्मत की खैर फरमा। अर्श का रब फरमाएगा, महबूबा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, मोहम्मद। अल्लाह फरमाएगा, मेरे प्यारे हबीब आपकी उंगली का जिधर जिधर इशारा होगा उस तरफ का हर हर बंदा जन्नत में जाएगा। अच्छा, अब महबूब ने जो इशारा फरमाना है दाएं तरफ करेंगे तो दाएं तरफ वाले जन्नत में। कुरान ने फिर इसको खूबसूरती से बयान किया, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, मुस्लिम शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 340 से हुजूर से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से कब राजी होंगे? हुजूर ने फरमाया कि जब तक मेरा हर हर उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा मैं राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कंजुल उम्माल की भी एक हदीस है पाक है, जल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 637 है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत फरमा रहे होंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला एक सवाल करेगा, महबूब अब तो राजी हो गए हो? महबूब नजर रहमत दौड़ाएंगे तो हर तरफ के उम्मती हुजूर के जन्नत के अंदर होंगे तो महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मालिक मौला अब मैं राजी हो गया हूँ। फिर शफाअत की 2 किस्में हैं और ये शफाअत कुबरा भी है, शफाअत सुगरा भी है। अच्छा, इस पर तो मुफ्ती सादिक साहब बता देंगे तो हम क्या करें? इस पर मुफ्ती सादिक साहब बोलेंगे। साहब माशाल्लाह, आपने ऐसे जब हवाले दिए माशाल्लाह आप पर रश्क आ रहा था और दिल चाह रहा था कि यही आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हवाले के साथ जो है ना ये गुफ्तगू। हाँ, नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सीनियर हैं और आपको देख देख कर सीखा। नहीं हम नहीं माशाल्लाह, आप में ये क्वालिटी है। देखें, हम सीनियर अगर आपकी मोहब्बत है और आप माशाल्लाह काबिल इल्म और वो हैं माशाल्लाह, मगर जो आपने ये हवाले है ना और सफ़ा नंबर, ये अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके इल्म इज़ाफ़ा फरमाए। अब मेरी बारी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब, शफाअत की किस्में जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, ये जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि शफाअत की अक़साम हैं, जिसमें शफाअत की एक किस्म शफाअत कुबरा है और दूसरी शफाअत सुगरा है। अच्छा, अब मामला ये है कि जब आप दर मुस्तफ़ा पे जाते हैं और बाबुस्सलाम से आप कदम बढ़ाते हैं और वहाँ पर जब कदम आगे बढ़ते हैं और उस दरबार में आप दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते जब आप रियाजुल जन्नत की जानिब आपके कदम उठते हैं तो वहाँ पर हुजूर का एक फरमान वहाँ लिखा हुआ नज़र आता है कि शफाअती ले अहलिल कबाइर, क्या है वदी शरीफ के अल्फाज कि मेरी जो बड़े बड़े, हाँ नहीं दूसरे क्या है, हाँ तो वो दूसरी हदीस है। तो यहाँ पर यह है कि वहाँ पर कि मेरे बड़े बड़े जो गुनाहगार जो उम्मती होंगे उनकी मैं शफाअत करूँगा। हाँ, कि बरोज़े क़यामत जो बड़े बड़े गुनाह उसकी शफाअत मैं करूँगा। और जब हम ये बात देखते हैं और बुखारी शरीफ खोलते हैं और बुखारी शरीफ में आता है कि क़यामत का मैदान होगा, कुरान फरमाता है कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल का दिन होगा। उस दिन अल्लाह की सिफत जो गालिब होगी वो सिफत क़हारियत की होगी। आज अल्लाह की जो सिफत है वो सिफत रहमत का गलबा सिफत कहर पर गालिब है। जैसे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के जो है ना रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, मगर लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस दिन अल्लाह की जो सिफत होगी वो वाहिद और वो क़हारियत होगी और ऐसी होगी कि ज़मीन तांबे की होगी, जो सूरज करीब होगा। तांबे की ज़मीन पर अगर आप वैसी जून जुलाई पर ज़मीन पर पाँव रखे तो आप खड़े नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल हाल होगा। और क़यामत में हुजूर फरमाने ज़मीन तांबे की होगी, खड़ा होने के साथ कितना बुरा हाल होगा।
यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाग जाएगा, दोस्त भाग जाएंगे, लोग साथ नहीं देंगे, अवाम मखलूक खुदा परेशान, और 50,000 साल का दिन होगा, कुरान कह रहा है, और वाज़े अंदाज में कह रहा है 50,000 सना, 50,000 साल का दिन होगा। मशवरा होगा कि चले आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह में चले, हमारे अब्बा हैं, उनसे कहें कि वो अल्लाह से अर्ज़ करें। वो कहेंगे, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। आज अल्लाह जलाल में है, वो दीगर अंबिया के बारगाह में होते होते, तमाम अंबिया से होते होते मखलूक परेशान, कहारी सिफत का मुकाबला तो नहीं, वहाँ पर अर्ज़ गुजारिश करने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में आएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, एक जगह जाएंगे वहीं काम बनेगा, और वो लिवाउल हम्द का झंडा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ हुजूर जलवा फरमा है, और वहाँ जाकर उनसे अर्ज़ करो, अगर उन्होंने अर्ज़ कर दिया तो करम होगा। मखलूक वहाँ पहुँचेगी और हुजूर से अर्ज़ करेगी, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं ही हूँ इसी काम के लिए। और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम बारगाह खुदा में आएंगे। बुखारी शरीफ में क्या क्या होगा निगाह मुस्तफ़ा ने देख लिया और बता दिया। मौक़िफ़ मौसमियात सिचुएशन और वहाँ के मामलात को देख कर एक बताता है कि ये यहाँ ये बादल, यहाँ ये बारिश जो है वो ईद के दिन लाहौर में होगी, ये होगा, वो उसका एक ज़न्नी अंदाज़ा है। मुस्तफ़ा क़तई वही के ज़रिए हमें बता रहे ऐसा होगा। और बारगाह खुदा में पहुंचकर हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, और जब बारगाह मुस्तफ़ा में बारगाह खुदा में जब हुजूर सजदा करेंगे, खुदा की रहमत जोश में आएगी, और अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका, महबूब सर उठाइए। सारी कायनात परेशान, अल्लाह को परवाह नहीं, मगर महबूब अलैहिस्सलाम जब सजदा करेंगे अल्लाह के इरफा रासका, महबूब सर उठाइए, सल तोता, सवाल कीजिए अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, मांगिए मांगिए, सवाल कीजिए, आप सब बोलते जाइए, इश्फा तुशफ़ा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। ये है शफाअत कुबरा। और इसीलिए शायर कहता है कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा, और कर काली कमली जो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। और इसीलिए कहा आला हज़रत ने कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो हुजूर की शफाअत से वो शफाअत कुबरा का दरवाज़ा खुलेगा, और हुजूर की शफाअत से वो अफराद जिन पर और यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, एक होती है वकालत, एक होती है शफाअत। वकालत में जज साहब ये गलती नहीं की, ये गुनाह नहीं किया, ये खता नहीं की, ये नहीं की, माफ कीजिए, मगर शफाअत में कहा जाएगा प्यारे गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, इससे अशियार है, पर ए अल्लाह ये मेरा है। अल्लाह फरमाएगा महबूबा जो तेरा है वो मेरा है। तो ये है कि उनका हो जाओ, जो उनका हो गया। आज सहाबा को मकाम मिला उनकी निस्बत से मिला, अहले बैत को अगर अजमत मिली उनकी निस्बत से मिली, हसन हुसैन को अगर मकाम मिला वो हुजूर की निस्बत से मिला, तो जो उनका हो गया वो रब का हो गया। तो इसीलिए उनका होना है दुरूद के ज़रिए, सुन्नत मुस्तफ़ा के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, मामलात के ज़रिए उनके हो जाओ, जो उनका हो गया वो रब का हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अल्लामा सईद साहब, ये शफाअत क्यों ज़रूरी है और शफाअत में वसीले की क्या अहमियत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। वक्त का मैं दिन तो चाह रहा है कि सारा दिन इस पर गुफ्तगू करते जाए, लेकिन शफाअत दुनिया में बहुत ज़रूरी है। और ये कहना कि शफाअत आखिर में जाके मिलेगी, वो फिर आदमी मारा जाएगा। शफाअत का इंसान अपने दुनिया में ही करना है। शफाअत क्यों ज़रूरी है? जिसको जन्नत में जाने का शौक़ है उसके लिए शफाअत ज़रूरी है। और जन्नत में जाने का शौक़ किसको नहीं है? जब आदमी कलमा पढ़ता है और जब कुरान में तज़किरे पढ़ता है हूरों के, रुफियान के और बागों के, तो कहता है मैं जन्नत में जाऊँगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ऐसे जा नहीं सकता शफाअत के बगैर, जब तक शफाअत ना हो। अच्छा, शफाअत तो हर चीज़ की शफाअत है ना, पता शफाअत, हमारा रोज़ा हमारी शफाअत करेगा, हमारी नमाज हमारी शफाअत करेगी। हमें दुनिया में अपना बंदोबस्त शफाअत का करना है, ये नहीं कि हम इंतजार करें आखिरत में जाने का। अच्छा, नमाज रोज़ा तो करेगी, लेकिन हम बड़े गुनाहगार हैं, तो उसके लिए बड़ी शफाअत की ज़रूरत है, हमें रसूल की ज़रूरत है, आले रसूल की ज़रूरत है शफाअत के लिए। तो इसीलिए एक छोटी सी हदीस में आपके सामने, ये आले मोहम्मद जो है ना, ये शफाअत का बेहतरीन ज़रिया। रसूल खुदा ने अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। किसी ने पूछा इसके मायने क्या है, बताया कि फातिमा के मायने आग के बुझाने वाली, आग की बुझाने वाली, आग को बुझाने वाली, जहन्नम की आग को बुझाने वाली।
क्या हो गया कि अभी शफात बन गई, आप शफा करेंगी जन्नत में जाने के लिए। अच्छा अली कहा, अब हज़रत अली की आले बैत की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़े बड़े शफाए जो बड़े बड़े गुनाहगार जो फंस जाए वहाँ के, बेशक कहा ए अली अगर दुनिया तुम्हारी मोहब्बत में जमा हो जाए तो मैं जहन्नम की आग को बुझा दूंगा। शफात बन गई, क्या बात है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और सुनाऊं, असहाब का, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बैठे हैं अपनी मसनद के ऊपर, बच्चे आपके बेटे खेलते हुए, कहा बाबा वो इमाम हम खेल और हम क्या गुलाम है, हम क्या गुलाम के बच्चे की औलाद से नहीं खेलते। कहा जाओ जल्दी से लिखवा के लाओ और वो लिख के दे दो तो मेरी कब्र में मेरी कफन में रख देना, वो मेरी शफात की काम आएगा। तो शाफी मैशर हैं ये, हमें तो शफात का बंदोबस्त दुनिया में ही करना है। हम दुनिया में शफात बंदोबस्त नहीं कर पाए तो वहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे उस हंगाम में के अंदर कि जहाँ माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, उस हंगाम में हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। हमें यहाँ बंदोबस्त करना है शफात का, और हमने चुनना है अपने लिए कि हम किसको चुने शफात के लिए, क्योंकि वो कोई आम घर नहीं है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता, आम शफात नहीं चलेगी। जैसे क़िबला ने कहा कि जनाब जब आदम की नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी, तो वहाँ आम आदमी की नहीं चलेगी। तो वहाँ हमें उसी हिसाब से, और खुदा का शुक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनकी शफात, उनकी आल की शफात हमारे साथ है। शफात इसलिए ज़रूरी है, इस तरह दुनिया में सिफारिश ज़रूरी है, इस तरह आखिरत में ये लफ्ज़ बदल की शफात बन जाता है और जन्नत के लिए शफात। माशाल्लाह, बेशक। वो ऐसा अर्ज़ करूँगा कि वहाँ पर इब्तिदा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफात से दरवाज़ा खुलेगा, फिर आदम की भी चलेगी, फिर अंबिया की भी चलेगी, फिर गौसे पाक की भी चलेगी, फिर दाता साहब की भी चलेगी, फिर ख्वाजा गरीब नवाज की भी चलेगी, और हज़रत ने जैसे फरमाया कि अहले बैत सहाबा सबकी चलेगी, दरवाज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत को। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा अगला सवाल यही था, मैं पूछने वाला था कि शफात जो हुजूर पाक ही करेंगे या उनके अलावा भी सहाबा कराम जो औलिया कराम है कहा जाता है तो वो भी कर सकते हैं? हुजूर फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीआ। हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ो। और आज हम कुरान से बहुत दूर है, इतना दूर है कि अच्छा कुरान, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि कुरान एक तो तिलावत के साथ साथ उस पर अहकामात पर अमल करने भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आप इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा आ जाए आपके पास और आपसे कहे कि आपके बॉस ने, आपके मालिक ने आपको ख़त भेजा है और आप उसको खाली पढ़ते जाए, झूमते जाए और झूमें और कहे मेरे बादशाह ने भेजा, मगर उस पर अमल न करे तो वो नाराज़ होगा। तो कुरान पाक पर पढ़ना भी है, कुरान पाक को समझना भी है, उसके हलाल और हराम को हलाल को अपनाना भी है, हराम से बचना भी है। हुजूर ने फरमाया जो कुरान पाक को पढ़े, कुरान पाक को याद करे, उसके हलाल को हलाल समझे, उसके हराम को हराम समझे, वो हाफिज़ बरोज़ क़यामत शफ़ाअत करेगा। हाफिज़ जो होगा वो शफ़ाअत करेगा, यानी जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो तो शफात का दरवाज़ा खोलेंगे, वो शफात कुबरा करेंगे। मगर यहाँ तो आपने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, वो नूर कुरान आ गया, कुरान से जब वो वाबस्ता हो गया तो वो भी अल्लाह के बारगाह में शफात करेगा। और ये तो ये हाफिज़ करेगा, बल्कि हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीआ। हुजूर ने कहा कुरान पढ़ो, बरोज़ क़यामत कुरान तुम्हारी शफात करेगा, कुरान शफात करेगा। ये तो अज़मत वाले हाफिज़ नूर कुरान की बरकत से वो शफाअत करें। यहाँ पर जो है वो आलिम के बारे में आता है कि वो शफाअत करेंगे, 10 अफराद की शफाअत करेंगे। एक दफ़ा मैंने अपनी दादी से कहा, मैंने कहा मैं आलिम हूँ, मेरी ये बात माने वरना मैं शफाअत नहीं करूँगा, मैं आलिम भी हूँ। तो दादी, चूँकि हमारे दादा भी आलिम थे, फिर वालिद साहब भी आलिम हैं, फिर चाचा भी आलिम है, दादी ने कहा बेटा तुम्हारा नंबर बाद में, पहले और मेरे बड़े और तुमसे पहले बड़े बैठे हुए। अच्छा मुफ्ती साहब ये कहूँगा डील बना लेते हैं, आप अल्लामा है, 10 अफराद कर सकते, एक मुझे भी शामिल कर लीजिए, कुछ डील बना लें हमारे साथ भी। असल में मामला ये है कि ये आप मुझ नक्शबंदी सादिक से क्यों कह रहे हैं? आप किसी, ये आपके ज़रिए आपका माशाल्लाह बड़ा ईमानी ज़ौक़ बड़ा है माशाल्लाह, अल्लाह आपने इज़ाफ़ा फरमाए। किसी एक से आपका इश्क होना चाहिए, सुभान अल्लाह, किसी एक से इश्क, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क हो जाए, सुभान हुज़ूर से तो इश्क है ही, आप हज़रत अली के इश्क में आ जाएं, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के इश्क में आ जाए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इश्क में आ जाए, आप बाबा ताजुद्दीन के इश्क में आ जाए, आप गौसे पाक के इश्क में आ जाए, आप दादा साहब के इश्क में आ जाए। चूंकि वजह यह है कि हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। और ऐसा इश्क हो
کہ ایک شخص تھے غالباً میں نے سنا پیر بہر علی شاہ رحمۃ اللہ، ان کو مولانا روم سے ایسی محبت تھی کہ جب مولانا روم کا نام آتا تھا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا۔ اللہ، آپ مجھ سے میری کیا اوقات ہے، وہ مجھے اپنی ذات پر کوئی جو میں ویکھا عملہ ولوں کچھ نہیں میرے پلے، اللہ، مجھے اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں، نسبت پر پکا ناز ہے، اور ایسا ناز ہے کہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ مجھے نسبت کی برکت سے انشاءاللہ وہاں مجھے امید ہے کہ وہاں کرم ہوگا انشاءاللہ، اپنی ذات کے بیس پر کچھ نہیں میرے پلے، مگر نسبت پر بڑا ناز ہے۔ تو کسی ایک سے نسبت ہو، وہ سے پاک سے ایسی نسبت ہو جائے کہ جب ان کا نام آئے، ان کی حکم آ جائے تو اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ پھر آپ کو ایسا سنبھالیں گے، کرم ہوگا۔ یہ تو یہ ہے جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ چھوٹا نابالغ جو بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو کہیں کہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے شفاعت کرے، اور ایسی شفاعت شافعہ و مشفعہ، وہ شفاعت قبول ہو جائے۔ ارے سوچئے تو صحیح، نابالغ بچے کی شفاعت جب ہو سکتی ہے بروز قیامت، جب بچہ نابالغ ماں باپ کی شفاعت کر سکتا ہے تو رسول پاک کی شفاعت کیوں نہیں ہو سکتی سبحان ہے؟ اللہ، سبحان غوث اللہ، پاک کی شفاعت کیوں نہیں ہو سکتی سبحان ہے؟ تو اللہ، ان پیاروں کی شفاعت سبحان ضرور اللہ، ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر میں نے کچھ لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے، جیسے کہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ بروز قیامت ہماری شفاعت فرمائیے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دعا اس طرح نہیں مانگنی چاہیے، آپ اس طرح کہیں کہ یا اللہ جب بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرما رہے ہوں تو ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دیجیے، یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو ایک عرض کروں، دونوں بات صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اور یہاں پر میں چونکہ ملباری ہوں، ہمارے ملباریوں میں ایک کتاب ہے جو باقاعدہ بزرگوں کے ذکر اذکار کی وظائف کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ بندہ اگر بہت ٹینشن میں ہو، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہو، تو روزانہ 1000 مرتبہ یہ پڑھے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اور 1000 دفعہ وہ اپنے مقصد کو دن میں رکھ کر اس کو پڑھے تو حضور کی شفاعت ہوگی، اور حضور کا وسیلے کی برکت سے وہاں کام ہوگا۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، عمرے پر گئے، وہاں جا کر حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ 9 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، دن میں ڈیوٹی، رات میں بیوٹی، یعنی ذکر اذکار عبادت میں، تو 5 بیٹیاں اور بیٹا نہیں تھا۔ حضور کے بارگاہ میں گئے، عرض کیا رسول اللہ جو کچھ پڑھ کر جمع کر رہا ہوں کوئی ہو جو آ کے اس کو سنبھالے۔ اللہ نے اسی سال بیٹا دیا، 2 سال کا تھا، چھت سے نیچے گر گیا، سر پر چوٹ آئی، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کومے میں چلا گیا، 99% چانسز نہیں ہے، 1% بچ جائے گا، باقی ہاسپٹل میں آپریشن ہوگا۔ جس دن آپریشن تھا رات بھر روتے رہے، حضور سے عرض کرتے رہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضور کہا کہ اگر لینا تھا تو دیا کیوں، اب دیا ہے تو سنبھالیں، عرض کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دل کو تسلی مل گئی کہ اب کرم ہوگا اور ٹھیک ہو جائے گا، اب ڈاکٹر جو بھی بولے ٹھیک ہوگا۔ صبح ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر خود بھی ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹینشن نہیں لیں، کہ 99 چانسز نہیں ہے، کہ 99% ٹھیک ہے، 1% پرابلم ہے، 1% جب ہاسپٹل آپریشن تھیٹر لے گئے، ڈاکٹرز آپریشن شروع کیا، واپس آئے، ٹیم بیٹھی ہے، کہنے لگا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بندہ، یہ بچہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں، یہ رات ہی رات کیا ہوا۔ تو یہ ہے حضور کی شفاعت، حضور کی نظر، اور یہ بھی آپ بول سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ شفاعت کیجیے گا، آپ سفارش کیجیے گا، انظر حالنا، آپ نظر کرم کیجیے گا، یہ عرض کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ وہ حضور کی شفاعت کروائے گا اور حضور کی شفاعت آپ قبول فرمائے گا، دونوں کہیں، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہیں۔ ارحم الراحمین رحمت للعالمین کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ سعید صاحب، یہ جو شفاعت ہے یہ بروز محشر ہی ہوگی یا زندگی میں بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ زندگی میں ہی ہمیں اس کا بندوبست کرنا ہے، اور زندگی میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری شفاعت ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ رحمان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنتان ہے۔ جنتان مطلب جنت کی جمع ہے، ایک سے زیادہ جنت، جنت باغ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی کہ ہمارا عمل بھی جو ہے نا یہ ہماری صفات کرے گا۔ اگر ہم نے اچھا عمل کیا اور برا عمل نہیں کیا، یعنی کہ ہم ڈرے اپنے رب کے سامنے، کہ کیسے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، ہم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ تو ایک تو یہ چیز ہمارے دنیا میں بندوبست کرنا ہے اس کا، کہ کیا ہم تیار ہو کے جا رہے ہیں اپنے رب کے سامنے، کہ ہم سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز کہ رسول نے تو شفاعت دنیا میں کر دی آدھے سے زیادہ، کیسے کہ جب آپ مابوس ہوئے ہیں تو اس سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے،
ان کے اعمال صبح دیواروں میں برے اعمال لکھے جایا کرتے تھے. جو رات کو گناہ کرتا تھا اس کی دیوار میں لکھا ہوتا تھا, اس کے چہرے جانوروں جیسے ہو جاتے تھے. تو رسول نے آنے کے بعد پروردگار سب سے پہلے وہ چیز ختم کرائی. شفاعت تو آپ کی آدھی دنیا میں ہی کرا دی کہ آپ جانوروں کی شکل میں نہیں بدلتے, آپ کے دروازے میں گناہ لکھے نہیں جاتے. وہ جو کپڑا ایک دفعہ پہن کے خراب ہوتا تھا دوبارہ آپ کو دھو کے پہن نہیں سکتے تھے. یہ تو میرے رسول نے شفاعتیں تو کرا دی جاتے دنیا کے اندر. اب باقی رہ گیا آخرت کا, تو وہ بھی کرائیں. جس نے دنیا میں کرائی وہ آخرت میں بھی کرائیں. سبحان اللہ. بے شک انشاءاللہ. ناظرین ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں سید قاسم شاہ بخاری صاحب کی آواز میں خوبصورت سا کلام. سید قاسم شاہ صاحب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. جو مدینے جاتا ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے, جو ملنے والا ہوتا ہے اس کا دل تڑپتا کہتا ہے کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا مجھ سے پہلے جا رہا
मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब, काश ऐसा कोई रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में आए कि सहरी मक्के में हो और इफ्तारी मदीने में हो। सुभान अल्लाह। वो हुजूर का फरमान है ना, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत लाजिम हो गई। सुभान तो ये है। और अभी जैसे आपने हज़रत से फरमाया कि क्या वहाँ शफ़ाअत होगी या यहाँ भी होगी, तो मुझे हदीस शरीफ याद आई। मेरा दिल चाह रहा है अगर 2 मिनट हो तो मैं अर्ज़ करूँ, या 2 मिनट ही बचे। 2 मिनट है ना, तो मैं शॉर्ट बोलता हूँ, वरना इसी को अगर फैलाए तो आधा घंटा बोल दूँगा। और वो हदीस शरीफ ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक नाबीना सहाबी आई। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है और इसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उन्होंने अल मुसन्नफ़ में भी नकल किया। एक नाबीना सहाबी आए, रिवायत करने वाले उस्मान बिन हुनैफ, और कहने लगे या रसूल, मेरे आँखों से मुझे नज़र नहीं आता। अब वो सहाबी थे, आँखों से नज़र नहीं आता, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था, मगर वो सहाबी हुजूर के बारगाह में आए, क्योंकि उनका अक़ीदा है कि हुजूर को रब की तरफ से देखें तो हबीब नज़र आते हैं, उम्मती की तरफ से देखें तो तबीब नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। जब ही तो बारगाह मुस्तफ़ा में आए कि या रसूल अल्लाह, आप जो है वो, हुजूर ने कहा सब्र करो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप दुआ करें। हुजूर ने कहा एक काम करो, अच्छी तरह वज़ू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो और ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबी रहमत या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा ली फ़शफ़िअ फ़िय्या, ये दुआ मांगो। अब वो नाबीना साहबी चले गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, आंखों में रोशनी थी। सुभान अल्लाह। अब ये हुजूर ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ में भी है और अल मुसन्नफ़ में भी है और दीगर जो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब में भी नकल किया। अब इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ बे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के वसीले से। ये आया तो पता चला कि हुजूर ने खुद अपना वसीले का तरीका बताया। और वो मोहम्मद कौन है? फरमाया नबी भी, नबी की रहमत, यानी नबी भी है और रहमत भी है। फिर ये था या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके ज़रिए मैं अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि मेरा काम हो जाए, आप शफात कीजिए, फशफ़िअ फ़िय्या, मेरी शफात कीजिए।